सरकार का मुख्य सचिव अनि पुलिस महानिर्देशक महोदय द्वारा सल्यूटिंग बेस तर्फ ल्याउने कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि सिक्किम का कहीँ गएको यो मान्छे चाहिँ सम्माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुलिस त्यसपश्चात नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी सिक्किम आर्म पुलिस सेकेंड इंडिया रिजर्व बटालियन India Reserve Sikkim Police Female Platoon Sikkim Home Guard Yes, गणतंत्र दिवस परेड का परेड कमांडर हुनुहुन्छ श्री जे श्रीमान परेड को मंच से गुजरने की आगे प्रदान करें।
Parade Commander Sri J. Jayabharyan, IPS. Army number 1, Lieutenant Colonel Inspector Umesh Chandra. Army number 2, Sasastra Seema Bhavan. Army number 3, Sikkim Armed Police, Sergeant Commander, Sub Inspector, Sagar Sura. Army number 4, Second IRPN, Sergeant Commander, Sub Inspector, Sagar Guru. Class number 5, third IRPN, Class Commander, Sub Inspector, Avinash Ramasamy. Class number 6, Sikkim Police Field Platoon, Class Commander, Sub Inspector, Joy Guru. Class number 7, Sikkim Police Field, Class Commander, Sub Inspector, Krishna Guru. Class number 8, Sikkim Home Guard, Class Commander, Sub Inspector, Bhushan Pradhan. Class number 9, National Cadet Corps, Class Commander, Cadet Vijay Mishra.
समीक्षा कलमे मध्यस्थ श्रीमान परेड को विसर्जन करने की आगे प्रदान करें। As for the communication issued by the Minister of Police, Home Guard and Civil Service, who is being conferred with the police medal for her meritorious service. The Worthy Awards. The President's Police Service Medal. This year, the medal is being presented to Ms. Eden Supa, SPS, Additional Superintendent of Police, for her meritorious service.
meritorious award to the government employees who have rendered excellent service to the department. चेतना सर We now have a presentation. Shri Rajendra Sethi, Director, Information and Technology Department. As an assistant director under Supreme Police in the year 1992. During his tenure in Supreme Police, he was instrumental in setting up राजेंद्र सर a computer center in police headquarters. In which Supreme Police became one of the first organizations of government of Sikkim to start computerized clearance system and implementation of CCTLS. राजेंद्र सर He is at present posted as Director of Information Technology Department, Government of Sikkim. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him this certificate for meritorious service on the occasion of Republic Day 2004. Shri Rajendra Sethi. इधर हो गई Amrita Pradhan, Private Secretary, Directorate of Handicrafts and Handloom. Srimati Arpita Pradhan joined the government service as a stenographer grade 3 in the office of District Collector West Sikkim in the year 1997. She was promoted as private secretary grade 2 under Sikkim government stenographer service in 2015. She is dedicated and sincere officer with a sense of professionalism and her work. She has displayed an ability to better perform her performance through diligence and initiative. In recognition of her sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon her a certificate of meritorious service on the basis of इधर इधर तो joined Second Police in the year 1983 as a constable. During his service period, he has served as a drill instructor, instructor for weapon and tactics, mob dispersal, and bomb disposal. He has been instrumental in training more than 40 batches of recruits and has conducted numerous refresher courses. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him this certificate of meritorious service on the occasion of Republic Day. कैमरा में लेके आना गुरुचेता गुरुचेता Leena Rasai, Head Assistant, Excise Department. Srimati Leena Rasai, Head Assistant, joined the government service as a local division clerk. 8 years of service, she has performed her duty with utmost sincerity and with impeccable integrity. She has maintained a cordial relation with her seniors and has excellent communication skills. She is punctual and prompt in carrying out her duties. In recognition of her sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon her the certificate for meritorious service on the occasion of Republic Day. इधर अनुज मैडम मैडम धन्यवाद Food and Civil Supplies Department. Joined the government service as an assistant sub inspector under Food and Civil Supplies Department in the year 1998. During the earthquake of 2011 and after the massive landslide that struck Mantan in Upper Jammu, North Sikkim on 13th of August 2016,
Shri Bhutia, through his sincere and dedicated service, ensured the availability of PDS food grains to the public of the affected villages. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him his certificate for meritorious service on the occasion of Republic Day. Shri Sonam Bhutia. Arjun Department. Shri Surya Rasari joined the government service as a musician in the culture department in the year 1986. Presently, he is posted as a senior artist in the department. In his 35 years of service, he has discharged duties assigned to him with utmost sincerity. He is reliable and makes an extra effort to complete any task assigned to him and is an asset to the department. He has taken part in cultural shows in various states of India and abroad and has been appreciated in every platform. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him the certificate for meritorious service on the occasion of Republic Day. And Public Relations Department. Nar Bahadur Shetty joined the government service as a runner under Information and Public Relations Department in the year 1985. He is presently posted as camera person in the department. During his 34 years of service, he has performed the duties as assigned to him with utmost zeal and enthusiasm. He is known for his dutifulness, multitasking abilities, and sense of responsibility, and has never shied away from his duties even during odd hours and on government holidays. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him this certificate for meritorious service on the occasion of Republic Day. Shri Nar Bahadur Shetty. Yeah. Shri Vamdi Bhutia joined the government service as a driver under Printing Registration Department in the year 1985. In his 35 years of service, he has been honest and upright in his disposition. He is a skilled driver with sound technical knowledge. He maintains a cordial relationship with all. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him the certificate for meritorious service on the occasion of Republic Day. Shri Prem Kumar Rai, Office Attendant, Higher Education. Kiran Kumar Rai, Office Attendant under Education Department, joined the government service in the year 1992. He is sincere and upright in his disposition and discharges his duty with utmost sincerity and dedication. His approach towards his government is praiseworthy. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him a certificate of meritorious service on the occasion of Republic Day. Through their profession, art, and other fields of work. For such contribution, I would like to request the Honorable Governor to present these tokens of appreciation to Shri Pemba Silva Sherpa, bronze medal winner in weightlifting at Halo India Youth Games 2020. Oh, Bemba.
Shri Prema Sunil Sharma. Shri Naroji Kaur. Tourism is under outreach campaign by the Department of Tourism and Civil Aviation. Next, we have MSME, the journey of Plain State and its enterprise industries department. MSME, the journey of Plain State and its enterprise. सम्माननीय राज्यपाल महोदय को बाहुलीबाट उहाँहरूलाई ट्रफी प्रदान गरिनेछ। सर्वप्रथम ऑलराउंड बेस्ट प्लाटून सिक्किम पुलिस फीमेल प्लाटून। मैडम सामने खड़ी होगी। Sikkim Police Female Platoon. Second Best Platoon, Indo-Tibet Border Police. Second Best Platoon, Indo-Tibet Border Police. Best Band Contingent, Army Band. Best Band Contingent, Army Band. The Vandima Consolation Prize, NCC. Consolation Prize, NCC.
कार्यक्रम का र विशिष्ट अतिथिगणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा आसीन भइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरे प्यारे सिक्किम वासी, भारत के गणतंत्र में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सिक्किम वासियों को सहित सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। यह हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और हमारे संप्रभुता की जश्न मनाने और सम्मान करने का दिन है। यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ साथ याद करने का अवसर है जिनके भारी प्रयासों और बलिदानों के कारण हमें स्वतंत्रता मिली, जिसके फलस्वरूप देश में गणतंत्र का निर्माण हुआ। आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों तथा बहादुर पुलिस के वीर सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जो कठिन परिस्थितियों में भी हमारी सीमाओं की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं पुलिस पदक और राज्य सम्मान प्राप्त करने वालों को भी बधाई देता हूँ जो आज सम्मानित हो रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा और समर्पण के माध्यम से राज्य को ख्याति दिलाई है। मैं इस अवसर देश के उन बहादुर बच्चों को बधाई देता हूँ जिन्हें राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। सिक्किम में लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों में मजबूत जड़ें जमा ली है। राज्य को अद्वितीय शांति, प्रगति और समृद्धि प्राप्त है। आधुनिकीकरण और विकास के लिए बढ़ाए गए कदम में हमने अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। विगत वर्षों में सिक्किम ने कई उपलब्धियां हासिल की है और अब यह दूसरे राज्यों के अनुकरण के लिए एक आदर्श राज्य बना है। यह ध्यान रखते हुए कि युवा किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति होती है, सरकार ने इसकी प्रतिभा को निखारने और मानव विकास में तेजी लाने के लिए कई नीतियां अपनाई है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे बच्चे एक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। हमारे राज्य का शिक्षक शिष्य अनुपात प्राथमिक में 1:10 और माध्यमिक स्तर में 1:21 है। यह देश में सर्वश्रेष्ठ है। स्कूल और प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के लगभग 8,000 शिक्षकों को पिछले वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किया गया है। मेरे सिक्किम वासियों, इसके अलावा शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए लगभग 100 स्कूलों और 12 कॉलेजों में स्मार्ट कक्षाएं, बायोमेट्रिक उपस्थिति और डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। इंडिया टुडे की ओर से छोटे राज्यों की श्रेणी में राज्य को शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के तहत वर्ष तथा पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों से वांछित परिणाम मिलने लगे हैं। हमारे कई युवा फुटबॉल खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन से राज्य को प्रतिष्ठा दिलाई है। वर्ष 2019 में हमारे खिलाड़ियों ने 65वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान विभिन्न पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी सुश्री श्रीदेवी सुबा और सुश्री मुस्कान सुबा को अंडर-17 विश्व कप के लिए इंडिया टीम में भाग लेने के लिए चुना गया है। इसके अलावा सुश्री नीमा डोमा गुप्ता को मलेशिया में आयोजित FIBA ओलंपिक फ्री क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लिया है। वहीं
13 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में भाग लेने के लिए चुना गया है। हमारे राज्य धीरे धीरे तीरंदाजी, मुक्केबाजी, पार्टी बिल्डर और अन्य खेलों में पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। अभी हाल ही में गुवाहाटी के खेलो इंडिया यूथ गेम कार्यक्रम में वेट लिफ्टर पेमा श्री शेरपा को मेडल पाकर सिक्किम राज्य का नाम रोशन किया है, जिन्हें अभी सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। स्वस्थ सुलभ कराने तथा पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार आधुनिकीकरणों के साथ एक 1000 बिस्तर वाला नया अस्पताल लेकर आई है और भारत सरकार का आयुष्मान भारत, जिसके द्वारा गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का सहयोग दिया जाता है, यह भारत सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके साथ ही लोगों को राज्य के भीतर विश्व स्तर की आधुनिक सुविधा स्वास्थ्य सुविधा तथा आने वाले दिनों में राज्य सरकार का पहला मेडिकल कॉलेज सिक्किम को मिलने वाला है। सरकार ने STNM अस्पताल और नामची अस्पताल में पूरी तरह से कार्यात्मक डेवलपमेंट स्थापित किया है। पूरे राज्य में HPV टीकाकरण शुरू करने वाला संभवतः सिक्किम देश का पहला राज्य है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए सिक्किम स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परिकल्पित इस बीमा के तहत कर्मचारियों के प्रति परिवार को 20 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रैनपुर स्थित इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण हेतु भविष्य में सिक्किम राज्य को एक नई पहचान देगी। जैविक खेती के कारण सिक्किम की पहचान एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में है। भारत में सिक्किम पहला राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में प्रतिस्थापित हुआ है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती समय की मांग है। प्रगति, समृद्धि और अंतर्राज्यीय मान्यता राज्य उद्देश्य है। इसके लिए राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचा के निर्माण का कार्य शुरू किया है। सार्वजनिक सुविधा वाले हमलों को आधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया जा रहा है। लोगों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न तीर्थस्थल और सड़क निर्माण में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार ने अथक परिश्रम किया है। इसके अलावा ग्रामीण संपर्क के लिए ढांचागत विकास राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है। सिक्किम में आज 2300 से अधिक सड़कें हैं जो राज्यवासियों को आपस में जोड़ती है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि राज्य में सड़कों को परिवहन के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले शहर का निर्माण कराया जाए और मौजूदा पुलों की भार क्षमता को उन्नत और मजबूत बनाया जाए। साझा टैक्सी शहर में परिवहन का प्राथमिक साधन है। परिवहन सुलभ कराने हेतु केवल कार्य की रूपरेखा को भी सरकार विकल्प के रूप में तलाश रही है। जहां तक हवाई सेवा संपर्क की बात है, पाक्यांग एयरपोर्ट को सुचारू क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक पहल की जा रही है। इसी मद में सरकार ने स्थानीय हितधारकों के बीच राशि भी वृद्धि की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य में सभी मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रैनपुर कादोंग गंगटोक के बीच 12 किलोमीटर सुरंग का निर्माण भी प्रस्तावित किया है। राज्य सरकार ने पूरे वर्ष भर भीड़ भाड़ मुक्त और सुलभ सड़क उपलब्ध कराने के प्रयास में सिलवानी टीमी के बीच 10.5 किलोमीटर सुरंग, नामची से टीमी के बीच 4.5 किलोमीटर सुरंग और जोरथांग से 8 दूरी कार्यालय के नजदीक 1.5 किलोमीटर सुरंग का निर्माण का प्रस्ताव रखा है। रेलवे कनेक्टिविटी के संबंध में प्रस्तावित लगभग 45 किलोमीटर सेवकरनपुर न्यू बीडी रेल लाइन पर काम की प्रगति दिखाई दे रही है। हालांकि इस परियोजना को पूरा करने के लिए भविष्य में बहुत कुछ करने की जरूरत है।
बेरोजगारी या कम रोजगार से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए पर्यटन में विशाल रोजगार सृजन होता है। इसलिए पर्यटन विकास वर्तमान समय में राज्य के प्रमुख चिंता का विषय है। पर्यटन राज्य में सबसे बड़ा आशाजनक उद्योग है। इसका लाभ बहुविध होता है और इसका लाभ निचले स्तर पर पहुंचता है। मैं राज्य के पर्यटन क्षेत्र में प्रमुख विकास का श्रेय मुख्य रूप से सरकार द्वारा अपनाई गई स्थिरता और पर्यावरण हितैषी नीतियों के तर्ज पर होने वाले विभिन्न ढांचागत विकास को जाता है। इन नीतियों ने हमारे जीवन, संस्कृति, निर्मल परिदृश्य और समृद्ध जैविक विविधता को संरक्षित किया है। इसके कारण सिक्किम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध 10 वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता मिली है। नाथुला व्यापार मार्ग के खुलने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में और सहयोग मिला है। जून 2015 में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के शुरू होने से पर्यटन क्षेत्र के विकास को और गति मिली है। तीर्थ यात्रा पर्यटन हमारे राज्य में पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक और स्रोत है। विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण, चार धाम, गुरु पद संभव की प्रतिमा, नामची में एक रोपो और राव बंगला में बुद्ध मार्ग और सिक्किम के प्राचीन पवित्रता की पर्यटक काफी सराहना करते हैं और इस तरह से राज्य के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। सिक्किम में ग्रामीण पर्यटन रणनीति ग्रामीण गरीबों को कम करने, नए कौशल लाने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, स्थानीय शिल्प को प्रोत्साहित करने और सामाजिक व्यवस्था के विकास को सुचारू बनाने में मदद करेगी। हमारे राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। हमारे राज्य में पिछले साल विदेशी पर्यटकों के आवागमन में लगभग 86% की वृद्धि हुई है। यहाँ करीब 15 लाख पर्यटक आए हैं। सिक्किम वास्तव में वैश्विक पर्यटन बाजार में अपनी जगह हासिल कर रहा है। आदर्श पंचायत बनाने के उद्देश्य से मैंने नागेश्वर तक पंचायत को गोद लिया है ताकि इस पंचायत की बुनियादी सुविधा एवं विकास प्रेरणा लेकर अन्य ग्राम या पंचायत को आदर्श बनाने की पहल राजनेता से लेकर अधिकारी एवं ग्रामवासी भी करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राज्य में लगभग 75% लोग गांव में रहते हैं। सरकार ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीण लोगों के जीवन में उत्थान के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सिक्किम गरीब आवास योजना के तहत 3050 पक्के मकानों का निर्माण का निर्णय लिया है। ये मकान मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चरण 1 के तहत हाल ही में पूर्ण किए गए 3000 पक्के मकानों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति के मापदंड के अनुसार पीने योग्य पानी चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके सभी ग्रामीण परिवारों को पीने के पानी की आपूर्ति प्रदान करने की पहल की है। 2024 तक राज्य सरकार ने सभी पुराने मौजूदा ग्रामीण जलापूर्ति के बुनियादी ढांचों के संवर्धन और मरम्मत का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही जहाँ जलापूर्ति नहीं की जा रही है वहाँ भी इसकी व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे ग्रामीण माताओं, बेटियों और बहनों को अब स्थानीय झरनों और धाराओं से पानी नहीं लाना पड़े, क्योंकि अपने घर के भीतर नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। सिक्किम के पंचायती राज प्रणाली को देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र में राज्य को कई राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, तो इस बात की गवाही है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण जनता को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिक्किम ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से सरकार ने पहली बार स्वयं सहायता समूहों को सरकारी स्कूल फॉर्म के सिलाई का कार्य आवंटित किए गए हैं। 2019 में 2000 स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई का ठेका इन्हें प्रदान किया गया है। ग्रामीण विकास के प्रति अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता ने स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 में राज्य को 16 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और स्वच्छ जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के माध्यम से बिजली और राजस्व की उत्पत्ति में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। राज्य के हर गली कूचे तक बिजली पहुंचाई गई है। अब हम 2200 से अधिक मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एक बिजली अधिशेष राज्य है। 2 दशक पहले राज्य में लगभग 34 मेगावाट जल आपूर्ति उत्पादन की स्थापित क्षमता थी। राज्य सरकार ने जागरूकता फैलाने के साथ साथ आवश्यक कानूनों के माध्यम से जैव विविधता संपदा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सिक्किम में संरक्षित क्षेत्र को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 31% तथा विस्तारित किया गया है, जो भारत में सबसे अधिक है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की निश्चित श्रेणी के तहत यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को ने इसके साथ ही कंचनजंगा जीव मंडल रिजर्व को हमारे संरक्षण प्रयासों और नीतियों को मान्यता देते हुए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में जैव नेटवर्क भंडार WNBR ने विश्व नेटवर्क में शामिल किया है। इसे पर्यावरण और टिकाऊ पर्यटन पर काम करने वाली शीर्ष वैश्विक एजेंसियों के एक संघ द्वारा शीर्ष 100 वैश्विक गंतव्यों में से एक घोषित किया गया था। राज्य के पर्यावरण अनुकूल हरित नीतियों के कारण राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। सिक्किम के वन क्षेत्र में 4% की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र के बाहर मुख्य रूप से निजी पेड़ों की संख्या 0.6% की वृद्धि पर्यावरण संरक्षण चेतना और सिक्किम के लोगों के प्रयासों को दर्शाता है। स्वच्छ भारत अभियान के आलोक में सिक्किम राज्य में स्वच्छता के संदर्भ में एक मिसाल कायम की है। स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में राज्य सरकार का सकारात्मक कदम काबिल तारीफ है। काफी वर्ष पहले से सिक्किम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी है तथा जनवरी 2016 में राज्य सरकार ने एक बजट अधिसूचना के माध्यम से राज्य में कूड़े कचरे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रकार डिस्पोजेबल कप, प्लेट, चम्मच, कंटेनर आदि की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का एक बड़ा राज्य है। मल्टी ग्राम पंचायत यूनिट में कूड़े कचरे को रिसाइकिल करने के बाद उपयोगी संगठनों का निर्माण करके पर्यावरण स्वच्छता के साथ राज्य राजस्व की वृद्धि में अपना योगदान पंचायत दे रहा है। प्यारे सिक्किम वासियों, सिक्किम में हमने ये सुनिश्चित करने का प्राथमिकता दी है कि हम महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करें। राजनीतिक स्तर पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी प्रकार सरकारी सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। सिक्किम राज्य महिला आयोग की स्थापना करके महिलाओं के कानूनी अधिकार और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा तैयार किया है। राज्य में निजी और सार्वजनिक स्थान पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सेवा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की स्थापना की है। यह जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्श से 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को भी सहायता प्रदान करता है। ये ऐसे उपकरण हैं जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा, शोषण और उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के साथ साथ कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की है। सरकार विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से शारीरिक रूप से अक्षम, वृद्ध, असहायों को भी सहयोग कर रही है। ऐसे विकलांग व्यक्ति जिसकी विकलांगता 40% और उससे अधिक है, 1000 रुपया प्रति माह का मासिक निर्वाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने ट्रांसजेंडर
बच्चों के लिए वित्तीय सहायता भी पेश किया है। इसके तहत 100 साल का अवधि के लिए 2000 रुपये मासिक भत्ता तथा स्नातक स्तर तक उनकी शिक्षा के लिए 100% परियोजनाएं सुनिश्चित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उत्तर जिला में अच्छी तरह से लागू की गई है। इसके लिए राज्य को प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राज्य के विकास के संदर्भ में मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हम यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम अभी भी सिक्किम को और अधिक जीवन आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की रणनीति विजन और लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के सिक्किम में जो शांति का माहौल बना रहा वो निश्चय सराहनीय है। इस हेतु सिक्किम वासियों को बधाई। जैसा कि हमारे महान देश के 71वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं, आइए हम एक बेहतर सिक्किम के निर्माण के लिए सकारात्मक प्रयास में अपनी भूमिका अदा करें। आइए हम अपने संविधान की मूल सिद्धांतों को कायम रखें और हमें अपने राज्य और राष्ट्र की शांति, प्रगति, समृद्धि और मजबूत करने की दिशा में काम करने की प्रतिज्ञा है। राज्य के विकास की जिम्मेवारी केवल राज्य सरकार की नहीं, बल्कि यह हम सभी लोगों की भी है। मैं सिक्किम के लोगों से आग्रह करता हूँ कि आगे आए, जिम्मेवारी निभाए और बेहतर कल के लिए एकजुट तरीके से काम करें। हमें अपनी अगली पीढ़ी के लिए अधिक विकसित, अधिक समृद्ध एवं एकजुट सिक्किम बनाने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम शांति और संस्कृति, सौहार्द की अपनी लंबी और पोषित परंपरा को बनाए रखने के लिए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि सभी हम लोग मिलकर के सिक्किम के विकास के साथ साथ पूरे देश का विकास करेंगे और इसके लिए सबको मेहनत करना है, परिश्रम करना है, मातृभूमि के लिए कार्य करना है। इस अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, जितना परिषद इसका पूरा नाम 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड है। इसके मारक क्षमता 17 किलोमीटर, यहाँ से इसका वजन 16 किलो 840 ग्राम। इसके बाद इसमें 3 तरह का पे शीश दिया जाता है और फायर का नतीजा टारगेट एरिया में देखने को मिलता है। इससे हम 3 प्रकार का एम्यूनिशन फायर करते हैं। हाई एक्सप्लोजिव जो कि टारगेट को एंगेज करता है, स्मोक जो कि हमारी फौज की हरकत को छुपाने के लिए धुएं का पर्दा बनाया जाता है, इल्यूमिनेशन जो रात के समय इलाके को रोशन करने दौरान अच्छी ट्रेनिंग पाया हुआ है तो 1 मिनट में 20 राउंड से ज़्यादा राउंड भी फायर कर सकता है। इसका मजल वेलोसिटी 305 मीटर पर सेकंड है और जो बम की सिस्टम है ये इसी का न्यू वर्जन सेम इसी का है। इसका वेट थोड़ा हल्का करके बनाया गया है। इसका वेट 16.5 kg और सेम काम है दोनों। इसका कितना है वेट है? इसका 30 kg है, इसका 16.5 kg। लाइट सेम एम्यूनिशन फायर किया जाता है इसमें। बाकी दोनों सेम चीज़। रेंज कितना है? 50 मीटर से लेकर 70 मैक 58 ये इंडिया का बना हुआ है। इसका कैलिबर 7.62 mm है। इसका वजन 24.7 kg है। इससे हम 360 डिग्री के एंगल में भी फायर कर सकते हैं और एलिवेशन देकर भी फायर कर सकते हैं। इससे 3 प्रकार का एम्यूनिशन फायर होता है, बाल, ब्लैंक और ट्रेसर। इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर है 100 राउंड प्रति मिनट और रैपिड रेट ऑफ फायर है 200 राउंड। आपके सामने जो वेपन डिस्प्ले किया गया है इसका नाम एंटी मटेरियल राइफल है।
इसके साथ 2 बैरल दी गई है। ये बैरल 20 mm की और ये वाली 5 mm की बैरल के साथ 2 प्रकार का एम्यूनिशन फायर करता है, API और API ट्रेसर। इसकी मैगजीन में 3 राउंड भरे जाते हैं। ये मैनुअल ऑपरेटेड है। एक राउंड फायर करने के बाद इसको दोबारा कोक करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ टेलीस्कोप साइड भी दी गई है। ये 20.5 mm की बैरल के साथ 1800 मीटर है। साहिबान, ये जो वेपन आपके सामने डिस्प्ले किया गया है, इसका नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर, टेलीस्कोपिक साइड जिसका वजन 800 ग्राम और टेलीस्कोपिक साइड के साथ पूरे आरएल का वजन 10 kg 800 ग्राम है। इससे विभिन्न प्रकार के राउंडों के साथ इसका रेंज अलग अलग है। HE-80 जो कि हम टैंक के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसका रेंज है 500 मीटर। HE जो एंटी पर्सनल में इस्तेमाल करते हैं, उसका रेंज है 1000 मीटर। स्मोक जो धुएं के पर्दे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका रेंज है 1300 मीटर। और इल्यूमिनेशन करके और मैन को इशारा कर देते हैं। इसका बैक ब्लास्ट थोड़ा डेंजर है। ये इन्फेंट्री में एक प्लाटून का तोपखाने के नाम से जाना जाता है। जब लड़ाई के दौरान एक इन्फेंट्री में प्लाटून एडवांस करती है तो 51 mm मोटर से प्लाटून को सपोर्ट फायर दिया जाता है। इसका कुतर 51 mm ही है और इसका वेट 4.88 kg है। इसको इस्तेमाल करने के लिए ये डायल साइड दी गई है। डायल साइड का बबल सेंटर में मिलाने के बाद यहाँ से मोटर के बम को भरा जाता है और ये लीवर है। लीवर को प्रेस करने के बाद इससे बम फायर हो जाता है। शॉर्ट रेंज हाई एंगल 1080 मीटर लॉन्ग जी वेट है। इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी है उसमें 30 राउंड आ गए हैं। ये ट्रांसपेरेंट मैगजीन है, इससे हमारे को पता चलता है कि हमने कितने राउंड फायर कर दिया और कितने हमारे पास बचे हुए हैं। इसके ऊपर ये जो टेलीस्कोप साइड दी गई है, ये इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो 3 गुना है। नंगी आँख से 3 गुना ज़्यादा दिखाती है। साहिबान, ये वेपन जो आपके सामने डिस्प्ले किया गया है 40 mm अंडर बैरल ग्रैंड लॉन्चर, ये इंडिया का बना है। इसका वेट 1.45 kg है और इसके अंदर ग्रेनेड यहाँ से डाला जाता है। ये एक अटैचमेंट है जिसे हम इंसास राइफल के ऊपर लगाते हैं। ग्रेनेड को यहाँ से लोड किया जाता है और ये इसका ट्रिगर है, यहाँ से इसको प्रेस किया जाता है। इसकी ग्रेनेड का किलिंग एरिया 5 मीटर रेडियस है। इसका एक सेक्शन में एक बम्बर मैन के नाम से जाना जाता है, उसके पास दिया जाता है। ये 5.56 mm इंसास राइफल ये इंडिया की बनी हुई है। इसका कुतर 5.56 mm, इसके अंदर 6 ग्रूज हैं जो दाहिनी साइड ट्विस्ट हैं। इसका कारगर रेंज 400 मीटर है। यह जवान के जाती हथियार के नाम से भी जाना जाता है जो इन्फेंट्री में हर जवान को इशू होता है। इसकी मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड की है, सेम इंसास LMG की तरह। यह भी ट्रांसपेरेंट है और हमें गोलियों को देख के हमें पता चलता है कि कितनी गोली है कितनी नहीं। इसके अंदर सिंगल शॉट और 3 राउंड कंट्रोल बस की 2 mm ड्रैगनो स्नाइपर राइफल, ये रसिया का बना हुआ है। इसे हम दुश्मन के अति महत्वपूर्ण टारगेट को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका कारगर रेंज 800 मीटर है और टेलीस्कोप साइड की सुविधा होने के नाते इसे हम दुश्मन को 1300 मीटर पर भी आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। इसकी मैगजीन के अंदर 10 राउंड आते हैं जो कि एक बार कॉक करने के बाद हम सिंगल शॉट फायर करके 10 राउंड फायर कर सकते हैं। .62 mm AK-47, यह रसिया का बना हुआ है। यह गैस ऑपरेटेड सिस्टम पर काम करता है। यह CQB का रोल में ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अंदर सिंगल शॉट और ऑटो की सुविधा दी गई है। मैगजीन में जितने राउंड होते हैं एक बार ट्रिगर प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिक पूरे राउंड फायर हो जाते हैं। इसके अंदर 2 प्लेटें दी गई हैं। एक प्लेट का वजन 1.5 किलो है और जैकेट का वजन 2.5 किलो है। ये जैकेट में ऐसे सामने ये बैक, ये फ्रंट। एक में लगाइए सर, देखिए इस पे कितना वेट है इसका। वेट मालूम पड़ेगा।
इसका 5.5 kg है, इसका इसके साथ ना इसके साथ 5.5 kg और इसके साथ 7 kg। 7 kg वेट सिर्फ इसी का ही है, उसके अलावा पिट्ठू, हथियार, राइफल उनका 80 किलो था। आर्मर का वेट वो 80 kg। हमारा जवान लोग करता है, देखना लेकर भी जाता है। ऐसे साहब गोली जो है 50 मीटर से दूर अगर जो फायर की जाती है तो ये प्रोटेक्ट करता है। AK-47 चारों तरफ रिजेक्ट भी हो जाता है अगर लगेगा तो करम ये सब पैसिव विजन नाइट गूगल है सर ये स्काउट को दिया जाता है। जब आगे चलता है तो रात के समय इसको लगा के आसानी से देख सकता है। अंधेरे में भी इसको उजाले में यूज़ नहीं करते क्योंकि इमेज आईडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जहाँ पे आईडी को कॉन्सोल पहन के खाली जगह में जाके ये प्रतीक जो है उसमें -30 से लेकर 40 डिग्री में आप पहन के उड़ेंगे तब भी आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा। ये वो आइटम है, ये 16,000 फीट के ऊपर में इशू करते हैं। और इसमें माउंटिंग इक्विपमेंट में कुछ हमारे पास ऐसे है कि एक इक्विपमेंट है कि अगर 2 से 2.5 घंटा अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तब भी आदमी को कुछ नहीं हो सकता। 2-2.5 घंटा उसका बैकअप है। ये मेड इन इटली Belchares, Yenas. Belchares Takman. वजन इसका 2 किलो 800 ग्राम उठता है और 800 ग्राम इसका हाँ इसको निकाल सकते हैं, ये निकल के देखिए निकल कर तो इसको हम इसके अंदर ऑक्सीजन हाँ 2 से 2.5 घंटे इसका बैकअप है। मतलब इसको अंदर बांध में हम उसकी लंग्स में एयर करके ताकि इसकी ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू चलती रहे। करीब यदि हमारे पास ये ऑक्सीजन भी नहीं है और कहीं पे कुछ भी नहीं है तो हम वो बैक आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग देने के लिए यूज़ किया जाता है सर। इसको मेडिकल हमारे जो शिक्षण के युवा है उनके लिए जो भी विभिन्न भर्तियाँ होती हैं भारतीय सेना में, जैसे और भर्ती है, जेसीओ भर्ती है, ऑफिसर भर्ती है, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ताकि हमारे जो शिक्षण के युवा हैं उनको पता चले और वो भर्ती हो सके, वो हम गाइडलाइंस लेते हैं।
가사 런트라이드라세요.
보다 그리움이 날 괴롭힌다 손해전 이것만 같은 너의 웃음소리 모래석처럼 힘없이 이고 있을 것만 같아 너는 어디에 So far away Come back home Can you come back home yeah. 차가운 세상 끝에 날 버리지 말고 내 곁으로 Come back home Can you come back home yeah. 모든 아픔을 필요해 여전히 널 기다려 이렇게 How you gotta go what you gotta do Come back विद्यार्थीगण यिनै रंगारंग सांस्कृतिक र विभिन्न कार्यक्रम सँगसँगै आजको यो कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ र यहाँ सबैलाई नेशनल एन्थमका निम्ति आफ्नो आफ्नो जग्गामा खडा भइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु।